Hello students, this is the lecture number 16 of electrostatics, and today's topic is the numericals based on the capacitance. This is the last video lecture of this electrostatics, or in this video lecture I am discussing with you the important numericals based on the capacitance. सभी टाइप के all the varieties of the numericals, maximum number of numericals we discuss in this lecture. So just I revise the what are the formulas used in the theory of the capacitance. The capacitance of the parallel plate C is equal to epsilon naught A divided by D, epsilon naught A divided by this. A is the area of the plate, D is a separation distance. तो ये एक इम्पोर्टेंट है, when air is the medium, air is a medium between the plates. When dielectric slab is introduced in the plate, then capacitance equal to, it increases K times epsilon naught A divided by D. When capacitors are connected in a series, the equivalent capacitance equal to sum of the reciprocal of the C1 plus C2 plus C3 plus dash dash, this is a Cn. When connected in a parallel, the sum of the all the capacitance, this is a Cn, when they are connected in a parallel. And energy stored in the capacitance equal to half Cv square, or it is written in another form, P square is Q square divided by 2C. तो ये सभी न्यूमेरिकल्स का ये सभी फॉर्मूलेट का डेरिवेशन पार्ट हमने इसके पहले पढ़ा है, और ये सभी के ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स. चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल. आज का पहला न्यूमेरिकल 1, क्वेश्चन नंबर 1. Two capacitors 6 microfarad and 12 microfarad. 6 microfarad and 12 are connected in series with the battery. Connected in series with battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. 6 microfarad capacitor is a 2 volt. Compute the total voltage of the battery. Compute the total voltage of battery. Okay, this is the question. Compute the total voltage of a battery. Two capacitors 6 microfarad and 12 microfarad connected in series. Series में कैसे connect करते हैं? This is the capacitor 1, capacitor 2. This is 6 microfarad and 12 microfarad connected in a series across the battery. एक बैटरी के across इसको connect किया. Connected across the battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor, मतलब ये कैपेसिटेंस हम इसको C1 C2 बोलेंगे, इसके अक्रॉस कितना है? दिट इज ए 2 वोल्ट और 2 वोल्ट. कंप्यूट द टोटल वोल्टेज. तो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है. अगर हमें थियरी में अच्छा नॉलेज है कि इसमें क्या होता है, जब अगर थियरी ठीक से समझ गए होंगे तो आराम से क्वेश्चन तुरंत ध्यान में आ जाएगा क्या करना है.
तो पहला तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। तो सीरीज में कैपेसिटेंस लगाते हैं तब चार्ज इज इक्वल, चार्ज क्या रहेगा, चार्ज इक्वल इन सीरीज। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हम निकालेंगे पहले, Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, और V1 ही लिखेंगे क्योंकि इसके अक्रॉस कितना है 2 वोल्ट है। C1 कितना है 6 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। सो ये 12 इंटू 10⁻⁻⁶ क्या आएगा, कूलम। दिस इज द चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर भी चार्ज कितना रहेगा, इतना ही रहेगा क्योंकि ये कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में। तो चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैरेड इज आल्सो सेम। तो ये Q इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 कितना है इसका 12 इंटू 10⁻⁶ और पोटेंशियल इसका V2 है, फाइंड करेंगे। तो ये चार्ज ये आ गया कैपेसिटेंस, और इसका चार्ज कितना है, चार्ज इक्वल टू जो पहले में था ये उतना ही रहेगा क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। तो चार्ज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये V2 इक्वल टू कितना आएगा, ये डिवाइड जाएगा तो ये आएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल किसमें, इन सीरीज V इक्वल टू V1 प्लस क्या होता है V2। सो पहले का 2 वोल्ट प्लस ये 1 वोल्ट, सो टोटल पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। तो यहाँ कितना आएगा 3 वोल्ट। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ये अगर पता नहीं है चार्ज इज द सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये गलत आएगा। तो अगर पता है तो आराम से इसको कर सकते हैं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका सेम टॉपिक का। पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल आगे आगे बढ़ते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ए नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 2, ए नेट capacitance of 3 identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance? What will be their net capacitance? What will be their net capacitance when they are connected in parallel? When they are connected in parallel. Find the ratio of the energy stored in the 2 configuration. Also find the energy stored. Find the ratio of energy stored in these 2 configuration. Find the energy stored in these 2 configuration. This is one more question. समझ लो कैसे। नेट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटेंस है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C मान लो। आइडेंटिकल, दिस आइडेंटिकल मतलब दे हैविंग ए सेम वैल्यू इन सीरीज। अगर वो सीरीज में कनेक्ट किया तो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ए, और नेट कैपेसिटेंस इज ए 1 माइक्रोफैराड। और कैपेसिटेंस
इन सीरीज। अगर इसका सीरीज में करते हैं 1/CS दिस इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3 है 3 डिवाइड बाई C। उल्टा करो तो CS इक्वल टू C डिवाइड बाई 3 एंड CS दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, सो C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड ईच कैपेसिटेंस वैल्यू। हर एक का वैल्यू कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड आएगा। और ऐसे अगर 3 तो हर एक का कितना 3 कैपेसिटेंस है, अगर वो सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका नेट कैपेसिटेंस आता है 1 माइक्रोफैरड। अगर वो पैरेलल, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। अगर वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना आता है, मतलब इसी को 3 कैपेसिटेंस है वो पैरेलल कनेक्ट किया, नेट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा, तो CP इक्वल टू क्या होता है C1 या C प्लस C 3 कैपेसिटेंस है, so this is 3 times of a 3 microfarad, so this will be a 9 microfarad। पैरेलल में क्या आएगा 9 microfarad। also find the energy stored in this 2 configuration। अगर पहला ये 3 कैपेसिटेंस हैं कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में लगाएं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाइड किया, टोटल पोटेंशियल V है। और ये तीनों को फिर क्या किया पैरेलल कनेक्ट किया, पैरेलल मतलब इस तरीके से लगाया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाइड किया। और ये दोनों केस में हमें क्या करना है, कितना रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड, तो हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज टू द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू हाफ C इन ए सीरीज V स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा V, तो हाफ CP इंटू इसके अक्रॉस भी कितना तीनों का, तो V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ चला जाएगा, तो CS डिवाइड बाई CP। CS कितना है 3 माइक्रोफैरड, CP कितना है इक्विवेलेंट ऑफ द इन ए पैरेलल कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो इक्वल टू 1:3। रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल series as well as energy stored in a parallel. The energy stored in the capacitance in a parallel combination is more than the energy stored in a series. तो ये this is the one question। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इसी से रिलेटेड आसान क्वेश्चन है, ध्यान दे के समझेंगे तो ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आते हैं। और ये ट्राइप सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम द रेफरेंस बुक या टेक्स्ट एक्सरसाइज, यू ऑल्सो ट्राई फॉर द सॉल्व एंड दिस अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ओके देखो क्वेश्चन 3 कैपेसिटर्स ईच, क्वेश्चन नंबर 3 capacitors each 9 microfarad, 9 connected in series 9 microfarad connected in series. What is the total capacitance combination? Number 1, what is the total capacitance of combination? This is the question. दूसरा, what is the total charge on each capacitance? Each capacitor. What is the total charge on each capacitor when
connected across 120 वोल्ट सप्लाई। जब इसके अगर 100 सीरीज में कनेक्ट किया 9 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, तो व्हाट इज देयर कैपेसिटेंस, और चार्ज कितना स्टोर किया, तो क्या किया, 3 कैपेसिटेंस से 1 2 और ये 3, दे आर कनेक्टेड 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड, they are connected in a series, they are connected in a series. What is the capacitance of the combination? So सीरीज में कनेक्ट किया तो इसका कैपेसिटेंस आता है 1 डिवाइड बाई सी एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी वन प्लस 1 डिवाइड बाई सी टू प्लस 1 डिवाइड बाई सी थ्री, 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 9, तो 1 बाई सी एस इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9, उल्टा करो इससे तो सी एस इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, मतलब 3 माइक्रोफैरेड हो गए। A combination, what is the total capacitance of the combination? So total capacitance of the combination is a 9 equal to 3 microfarad. कितना था, 3 microfarad. This is the answer of the first question. Second question क्या है, what is the total charge on the each capacitor? So total charge on each capacitor in a series equal charge stored in all कैपेसिटर्स। सीरीज में सभी का कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, इक्वल स्टोर होता है, Q इज इक्वल टू सी एस इंटू वी हो जाएगा। तो सी एस कितना गया, 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, और वी कितना लगा है 120, 12 3 जा 36 0 into 10 raised to minus 6 कूलम। दिस इज द चार्ज स्टोर्ड, क्योंकि सीरीज में लगाने से सबका चार्ज क्या रहेगा, क्यू क्यू रहेगा और पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। लेकिन हमें पोटेंशियल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से एक पैरेलल का क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। The 3 capacitors each कितना है, 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड and 4 माइक्रो, दिस इज द NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, okay, not a microfarad, they are in a picofarad, these are the in a picofarad, are connected in a parallel, what is the net total capacitance of the combination, determine the charge on the each capacitor, what is the, this is not total charge, what is the charge on each capacitor when they are connected across the 100 volt supply. This is the textbook question. फिर से समझ लो क्या है क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन ए पैरेलल, ये एक कैपेसिटर 1, दिस इज द C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और ये C3, और कनेक्टेड इन ए पैरेलल, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया अक्रॉस दी 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का। तो कैपेसिटेंस ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, पहला कैपेसिटेंस के कितना है 2 पिकोफैरेड, दूसरा कितना है 3 पिकोफैरेड, और चौथा कितना है दिस इक्वल टू, एंड चौथा कितना है तो फोर्थ इज ए, दिस थर्ड इज ए 4 पिकोफैरेड, तो इसका वैल्यू है 4 पिकोफैरेड connected in parallel. What is their equivalent? So what is the capacitance
टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना आएगा, दिस सिंपल क्वेश्चन। तो पैरेलल कनेक्ट किया तो Cp इज इक्वल टू कितना आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिफरेंट, पोटेंशियल सेम, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। तो दो टोटल कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 दिस इक्वल टू 5 से 2 2 प्लस 3 5 प्लस 9 दिस इज ए 4 इज ए 9 पिकोफैरड। ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस ऑफ इसी क्वेश्चन का। चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, हर एक का चार्ज कितना है, चार्ज इज ए डिफरेंट, अलग अलग चार्ज। तो हम निकालेंगे चार्ज ऑन 2 picofarad, this is a Q1 equal to C1 into V। पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो 2 कितना, 2 पिको मतलब 10⁻⁻12 और V कितना है, तो 100 वोल्ट। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10 कूलम इस Q1। दूसरा क्वेश्चन है चार्ज ऑन द C2, चार्ज ऑन, दूसरा है 3 पिकोफैरड। ये कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज कितना है, द Q2, इसके ऊपर कितना है, Q2 इक्वल टू क्या है, C2 इंटू वी। C2 कितना है, 3 इंटू 10⁻12 और ये 100। पोटेंशियल इज सेम, सबके ऊपर पोटेंशियल, सो 3 इंटू 10⁻10 कूलम। तीसरा है चार्ज ऑन द 3, चार्ज ऑन 4 पिकोफैरड इक्वल टू, अब इसको लिखते Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी, 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100, सो दिस इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। तो पैरेलल कनेक्ट किया तो हर एक का चार्ज क्या आता है, अलग, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पैरेलल का एक और सीरीज का दूसरा, ऐसे हमने क्वेश्चन देखा अब तक। अब चलो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन वाले कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर्स ऑफ ए कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। एक क्वेश्चन फिर देखते हैं दूसरा वाला। Okay, 4 capacitors are connected as shown in figure A. This is the question number 4. 4 capacitors connected as shown in figure. What is the equivalent capacitance? तो ये क्या किया, 4 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए इस तरीके से। ये ए यहाँ से लेकर इसको यहाँ कनेक्ट किया और ये कनेक्ट यहाँ किए, C1, C2, C3 और C4, और दिस इज द पॉइंट B. The values of the 2 माइक्रोफैरड, ये दूसरा है 3 4 5, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड। इस तरीके से कैपेसिटेंस कनेक्ट किए। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड नेट। अब देखो ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इसको कहाँ से कैसे एनालिसिस करना है। देखो ये सिंपल तरीका, यहाँ से ए है, ए से स्टार्ट करते यहाँ जाएंगे, तो ए से
ए टर्मिनल को कौन कौन सा कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, C1 है, और इसी तरीके से C2 और C3 भी कनेक्टेड है। यहाँ से देखो ये टर्मिनल को 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, मैं इसको 3 कैपेसिटर्स यहाँ कनेक्टेड दिखा है। यहाँ से जाएंगे तो ये इसको C1 भी कनेक्टेड है, इसको C2 का एक टर्मिनल है, C3 का, तो ये हो गया C1, दूसरा C2 और तीसरा कौन है, C3। ये तीनों कनेक्टेड है कहाँ, ए को, ए से C1 कनेक्टेड है, ए से C2 और C3 भी कनेक्टेड है। उसके बाद C1 एंड C2 ये दोनों कनेक्टेड है, और ये C3 को कनेक्टेड है। ये C1 C2 कनेक्टेड, C1 एंड C2 ये कनेक्टेड है, और इसका कॉम्बिनेशन किसको कनेक्टेड, C3 को, तो मैंने ये C3 का कॉम्बिनेशन लगाया यहाँ। फिर C4 कैसा है, यहाँ तीनों का कॉम्बिनेशन का आगे ये कौन है, C4, और उसके बाद बनता है B। दोबारा देखो, A से 3 एक C2 और C3 कनेक्टेड है, C1 एंड C2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, और इसका कनेक्शन किसको कनेक्टेड है, C3 को। मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों हो गया पैरेलल। देयरफॉर C1, C2 एंड C3 आर पैरेलल। तीनों क्या हो गया, ये पैरेलल। तो तीनों को इक्विवेलेंट निकालते हैं, C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू कितना, ये 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड 4 3 4 7 और ये 9 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस पार्ट, कितना, 9 माइक्रोफैरेड। अब इसका ये इक्विवेलेंट जो है इसका पैरेलल का, उसका ये कैसा है, तो ये है इसको सीरीज में है, तो दिस C नेट इक्वल टू CP प्लस दिस इज C4, 9 माइक्रोफैरेड, और इसका वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरेड, सो दिस इक्वल टू 19 माइक्रोफैरेड। कितना आएगा, this will be a 19 microfarad। ये हो गया नेट कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अलग वैल्यूज भी हो सकता है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। चलो वन मोर क्वेश्चन देखते हैं इसका, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका किस तरीके से आता है, एनर्जी स्टोर का देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ठीक से, और बाद में इसको समझ लेना। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged by a 200 supply। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged by 200 volt supply, 200 volt supply, then disconnected from the supply, disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor, connected another uncharged capacitor of 2 microfarad, 2 microfarad, 2 microfarad. How much
electrostatic energy is lost during the sharing the charges. This is the important question. 4 microfarad capacitor is charged by the 200 volt. कितना दिया पहले? C1 कैपेसिटर इक्वल टू 400 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल V इक्वल टू 200 वोल्ट. इट इज चार्ज 400 इज ए चार्ज बाय 200 वोल्ट कैपेसिटर. ये के चार्ज किया. तो पहला पार्ट एनर्जी stored in a 4 microfarad capacitor. This we can write this U1 equal to half C1 V. We can write this is the V1. So C1 half CV square. तो दिस इक्वल टू हाफ. कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रो है, मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू 200 इसका स्क्वायर. इसको लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और 200 इंटू 200 स्क्वायर ऑफ इट. तो दिस इज ए ओके, दिस इज ए 40,000. 200 इंटू 200, तो ये 2 जीरो का ये इसका स्क्वायर 10⁻⁴ और 2 का 4. ओके, देन 8 इंटू 1 2 3 4, तो 10⁻⁻². दिस इज एनर्जी इन ए जूल. दिस इज U1 इक्वल टू 10⁸ इंटू 10⁻⁻8 जूल. दिस इज इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर. अब क्या किया? ये कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया बैटरी से. इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर. दूसरा एक कैपेसिटर से अनचार्ज ऑफ ए 2 माइक्रोफैरेड. इसको कनेक्ट किया. किस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा? तो ये कनेक्शन हो गया इस तरीके से. दे आर कनेक्टेड. ये कितना था? 4 माइक्रोफैरेड. अब ये दोनों का ऐसा कनेक्ट किया तो ये हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल. क्या हो जाएगा? पैरेलल. तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या आएगा फिर? इन पैरेलल पोटेंशियल इज क्या बोलते हैं? सेम. और इसी को सेम पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. हमने पढ़ा थ्योरी में कॉमन पोटेंशियल. और ये जो कॉमन पोटेंशियल है वो हम फाइंड करेंगे. 10⁻⁶ गेट कैंसिल. V इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 2 8. दिस 200 इंटू 4 800 डिवाइड बाई 6 4 से ये. तो दिस इक्वल टू डिवाइड करो तो ये आएगा 2 से 400 बनेगा और ये 3 बनेगा. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल. देन एनर्जी स्टोर्ड. दोनों कैपेसिटेंस ऐसे कैसे अभी पैरेलल है. ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड है. और दोनों जब पैरेलल कनेक्ट किया तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना हो गया? 400 डिवाइड बाई 3 हो गया ये दोनों के अक्रॉस इस तरीके से. तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? कॉमन पोटेंशियल आ गया फिर 400 डिवाइड बाई 3 वोल्ट. और इसका कैपेसिटेंस पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड. तो एनर्जी stored in a combination in parallel combination इक्वल टू U2 लिखेंगे इसको हाफ CP इंटू V स्क्वायर. हाफ CP कितना है? तो 6 माइक्रोफैरेड है. 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल कितना है इसका? सो दिस कॉमन पोटेंशियल 400 डिवाइड बाई 3 इसका स्क्वायर. तो ये 2 से डिवाइड करो तो ये 3 इंटू 10⁻⁻6 आएगा इंटू 400 इंटू 400
इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा 3। अब देखो इसके डिवाइड करते हैं, ये 4 जीरो है, 1 2 3 4, इसके साथ जाएंगे तो ये बचेगा 10⁻⁻2 और ये लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 3। ये कितना बचा 4 4, ये हो गया 16, 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3, 4 4 जा 16 और ये 4 जीरो इसके साथ जाएंगे तो कितना 10⁻⁻6 और 10⁻4, तो ये बचेगा 10⁻2। तो डिवाइड करो, 3 5 15, 1 बचेगा, 0 ले लो इसको तो 0 और ये 3 3 9 इंटू 10⁻⁻2। तो एनर्जी लॉस्ट इनिशियली कितना एनर्जी थी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी, और ये कितना हो गया U2 इज अ फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल U1 माइनस U2। U1 कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 और U2 कितना है 5.03 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये भी जूल में। तो इसके डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, 8 डायरेक्ट लिखते थे तो ये 8 में से 5 जाएंगे तो ये 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट। Energy lost equal to this energy is lost in the form of heat during the transmission of the charges from one capacitor to the another capacitor. Energy is transferred and this transfer of energy is in the form of electromagnetic radiation in the form of heat. This is the energy lost. This is important numerical. तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 16 वीडियो लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली ईच वीडियो लेक्चर इज ए 40 मिनट्स या 45 मिनट तक, मैक्सिमम 50 मिनट, ऐसे करके 16 वीडियो लेक्चर में ये पूरा यूनिट हमने न्यूमेरिकल के साथ और थियरी क्वेश्चन के साथ ठीक से समझा है। तो इसका सभी का नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है गूगल क्लासरूम में, वहाँ से नोट्स मेंटेन करो। उसके बाद सभी न्यूमेरिकल्स उसमें लिखे हैं और न्यूमेरिकल ट्राई करो। और ये सैटरडे, आज सैटरडे है, सैटरडे में ये सिलेबस कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये दिस इज द फर्स्ट यूनिट विच इज इंक्लूड द 2 चैप्टर्स और ये लगभग 16 मार्क्स के लिए है और ये अच्छा वेटेज वाला यूनिट है, अच्छी तरह से पढ़ लो। और मंडे तो मैं एक 50 मार्क्स का टेस्ट इसके ऊपर अपीयर होना है और ये 50 मार्क्स में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लगेगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो मैं ये थ्योरी यूज़ करना है, थ्योरी फॉर्मूलेज यूज़ करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रफ पेपर पे और MCQ टाइप क्वेश्चन अटेंड करना है लाइक ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और इसके लिए एक समय सीमित रहेगा और उसी समय के अंदर 10 क्वेश्चन अटेंड करना है और उसके आंसर्स करना है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे तो फास्ट तुम कर सकते हैं। उस टाइम लिमिट में तुम्हें वो क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू लूज सम क्वेश्चंस। तो एक बार टेस्ट अटेंड करने के लिए तो वो तुम उसको अटेंड कर सकते हैं और साइड में रफ वर्क करके उसको सॉल्व करो और अटेंड करो। कितना मार्क्स आता है उससे तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट क्या हो गया वो पता चलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।